Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Origin Career Institute. Today I am going to teach you the 7th lesson of your supplementary reader book Vistas, and the name of the lesson is Evans Tries an O Level. Actually, this story is about a criminal who is very clever, notorious, and he has extraordinary mind. Actually, this lesson is a game of outwit. In this lesson, you shall know how did Evans, who is known as Evans the Prick, who is criminal, how did he outwit the whole prison staff? Not only the newly recruited officer, but senior prison staff as well as the head of the prison. How did he use his mind and how did he outwit them? Before starting the chapter, let's know about this drama. Actually, this is a drama written by Colin Dexter. Before you read, should criminal in prison be given the opportunity of learning and education? Author says कि जेल में कैदियों को सीखने और पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए. Actually, our law, our constitution allowing the criminal to learn and education. So there are some characters, dramatis personae, the secretary of the examination board, the governor of HM prison Oxford, James Evans, a prisoner, Mr. Jackson, a prison officer, Mr. Stephens, a prison officer, the Reverend S. McCleary, an invigilator, Mr. Carter, detective superintendent, and Mr. Bell, detective chief inspector. Okay, to know more about the chapter, more about the story, more about the drama, let's start the chapter. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. जेल में ओ लेवल जर्मन परीक्षा के प्रबंध करने में सारी सावधानियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे कि परीक्षार्थी कैदी इवांस को बचने का कोई भी मौका ना मिल सके. बिकॉज he is a criminal and the whole machinery, the whole staff of the prison was careful because he had escaped 3 times, but now they do not want to take the chance. Okay, let's go further. It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. ये मार्च के शुरू की बात है, शुरुआती दिनों की बात है, जब परीक्षा बोर्ड के सचिव को ऑक्सफोर्ड जेल से एक टेलीफोन आया. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. ये वास्तव में कुछ अनयूजुअल, अस्वाभाविक प्रार्थना थी, अजीब सी प्रार्थना थी. गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प. गवर्नर, किंतु मैं नहीं समझता कि हमें सहायता करने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए.
जस्ट द वन फेलो यू से, केवल एक व्यक्ति है तुम कहते हो? यस, दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस। यही बात है, लड़के का नाम इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। उसने पिछले सितंबर से ओ स्तर की जर्मन की रात्रि की कक्षाएं आरंभ कर दी थी। He says he is dead keen to get some sort of academic qualification। वह कहता है कि वे किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का तीव्र इच्छुक है। डेड कीन मीन्स तीव्र इच्छुक, मरा जा रहा, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है। इज़ ही एनी गुड, क्या वह ठीक ठाक है? ही इज़ द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज़ हैड individual tuition all the time. Really, would have cost him a packet if he had been outside। यह कक्षा में केवल अकेला विद्यार्थी था, इसलिए आप कह सकते हैं कि उसने सारा समय व्यक्तिगत ट्यूशन किए हैं। वास्तव में यदि वह बाहर होता तो इस कार्य में उसका काफ़ी धन लग जाता। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? कि अच्छा, चलो उसे एक मौका देते हैं। क्या हमें देना चाहिए? दैट्स जोली काइंड ऑफ यू। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ? यह आपकी ध्यानता है। अब वास्तव में इसका प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया क्या है? ओ डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। व्हाट्स हिज नेम? यू से इवांस। ओह, इस बारे में चिंता ना करें, मैं आपके पास सारे फार्म और सामान भेज दूंगा। उसका क्या नाम है? आप कहते हो इवांस, जेम्स रोड्रिक इवांस। इट साउंडेड रैदर ग्रांड। जेम्स रोड्रिक इवांस, ये अपेक्षाकृत शानदार प्रतीत होता है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज़ ही? बस एक बात गवर्नर, कि वह एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान तो नहीं है, क्या वह है? आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं उसका आपराधिक रिकॉर्ड या इस प्रकार की कोई भी बात नहीं जानना चाहता। किंतु नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप। दे टेल मी, बिट अ कार्ड, रियली one of the stars at the Christmas concert, imitations, you know the sort of thing। नहीं, हिंसा का कोई रिकॉर्ड उसके खिलाफ नहीं है, वे खुश मिजाज किस्म का लड़का है। वे मुझे बताते हैं एक कार्ड के टुकड़े जैसा, यानी थोड़ा भी हिंसक नहीं, वास्तव में क्रिसमस संगीत सभा का एक सितारा। इमिटेशंस, नकल उतारना, स्वांग करना, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आप इस प्रकार की बात जानते हैं। माइक यारवुड स्टफ, माइक यारवुड की तरह। नो, ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लैप्टोमैनिक। कह रहे नहीं, वह बस एक कॉन्जेनिटल मीन्स संवेदनशील, सेंसिटिव, क्लैप्टोमैनिक अ टाइप ऑफ डिजीज इन दिस a person habitually make some thefts, that's all। बस उसे चोरी करने की आदत है, चोरी करने की बीमारी है, बस इतना ही सब। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स। गवर्नर कुछ और जोड़ना चाहता था, कुछ और जोड़ने के लिए वो लालायित हुआ। बट ही थॉट बेट ऑफ इट, किंतु उसने इतना ही अच्छा समझा। He would look after that particular side of things himself। उसकी इस विशेषता का वह स्वयं ध्यान रखेगा। Presumably, perhaps, शायद, said the secretary। सचिव ने कहा, you can arrange a room where, आप एक कमरे का प्रबंध कर सकते हैं। कहाँ? No problem, he is in a cell on his own। If you have no objections, he can sit the exam
इन देयर। पता, कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वह स्वयं अपनी एक कोठरी में है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो वह वहाँ बैठकर परीक्षा दे सकता है। दैट्स फाइन, ये अच्छा होगा। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट्स, और हम जांच कार्य के लिए सेंट मैरी मैक्स से एक पार्सन, एक पादरी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इफ दैट्स, यदि वह, फाइन, यस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे। अच्छा, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर बहुत सारे पादरियों का निवास स्थान है, बहुत सारे पादरी वहाँ रहते हैं, क्या वहाँ नहीं है? द टू मैन चकल्ड गुड नेचुरली एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट। दोनों आदमी चकल्ड, खुश मिजाज से, खी करते हुए, खिसियाते हुए, कहते हैं खुश मिजाज से खिलखिलाए, और सचिव ने, सेक्रेटरी ने एक अंतिम विचार रखा। At least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? कम से कम बस एक बात और, वो कहता है आपको ऐसे किसी से संपर्क रखने में या संपर्क रखने से रोकने में कोई अधिक कठिनाई तो नहीं आएगी। कम्युनिकेटो मीन्स टू कॉन्टैक्ट, शुड यू, क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि आपको उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. गवर्नर ने नम्रता से एक बार फिर खी मतलब दबी हंसी से खिलखिलाया, एंड रीइटरेटेड, दोहराते हुए बार बार अपने धन्यवाद को, एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन, और धीरे से फ़ोन को रख दिया। Evans the break, as the prison officers called him. Evans the break, Evans जेल तोड़ने वाला, जैसा कि जेल के अधिकारी उसे कहते थे। Thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he would not now be gracing the governor's premises in Oxford. 3 बार वो जेल से भाग चुका था। यदि उत्तर की अत्यधिक सुरक्षा वाले जेलों में अशांति न होती तो वह गवर्नर की ऑक्सफोर्ड जेल में रहने की कृपा न कर रहा होता। एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुड नॉट बी डिसग्रेसिंग दैम, और गवर्नर पूर्ण रूप से ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उनको डिस्ग्रेस, कलंकित नहीं करेगा। नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। ये बात नहीं थी कि इवांस वास्तव में कोई बोझ था, कि जिसकी उपस्थिति लगातार परेशानी उत्पन्न करती रहती है। He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, would see to it personally. वह ऑक्सफोर्ड में ठीक रहेगा, यद्यपि गवर्नर उसका स्वयं ध्यान रखेंगे। And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. और इसके अतिरिक्त जरा सी संभावना न थी कि इवांस वास्तव में जर्मन भाषा के ओ लेवल में, ओ स्तर में रुचि रखता था। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना थी, बहुत हल्की सी संभावना थी। एट 30 PM on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing, और सोमवार 7 जून के 8 बजे, शाम के साय के 8 बजे, इवांस के जर्मन अध्यापक ने रिक्रिएशनल ब्लॉक मतलब मनोरंजन कक्ष में
जो डी विंग के बाहर था। भारी सुरक्षा के बीच इवांस से हाथ मिलाया। गटन ग्लक हर इवांस। Pardon? I said good luck for tomorrow. Oh, thanks, sir. I mean, sir, danke sochon. गुड लक श्रीमान इवांस, जर्मन भाषा में उसने कहा। मतलब पार्डन, माफ़ कीजिए, समझ नहीं आया। मैंने कहा गुड लक, तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। ओह थैंक्स, ओह धन्यवाद सर, आई मीन मेरे कहने का अभिप्राय था डैंके शॉन, जर्मन भाषा में। यू हैवंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट वास्तव में परीक्षा पास करने की संभावना नगण्य है। कहने का मतलब यू हैवंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, तुम्हारे पास कोई ऐसी बिल्ली नहीं है जो इस सेल से मौका मिल जाए और बाहर निकल जाए। वास्तव में कहने का मतलब तुम्हारे पास पास होने के चांस बहुत कम हैं। बट किंतु आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस, मैं सभी को आश्चर्यचकित कर दूंगा, इवांस ने कहा। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह 8:30 बजे, इवांस हैड अ विजिटर, 2 विजिटर्स इन फैक्ट। इवांस से कोई मिलने आया, वास्तव में 2 लोग मिलने आए थे। ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर। वह अपनी ग्रबी मीन्स लाइनिंग, धारों वाली मैली कुचैली बनियान, अपने एक उसी के समान मैले कुचले पायजामे में, ट्राउज़र में ठूस ली। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और अपनी बंक से, यानी जो उसका बैठने का लेटने का स्थान था, उससे खड़ा हो गया। स्माइलिंग चीयरफुली, खुशी से मुस्कुराते हुए, प्रसन्नचित्त। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। सुप्रभात श्रीमान जैक्सन, ये वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डीविंग, एंड he and Evans had already become warm enemies. जैक्सन डीविंग का एक वरिष्ठ जेल अधिकारी था, और वह इवांस शुरू से ही वार्म एनिमीज, शत्रु बन चुके थे, दुश्मन बन चुके थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, अ बर्ली श्योरली लुकिंग मैन, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। जैक्सन की एक तरफ अधिकारी स्टीफन्स खड़ा था, जो कि एक हष्ट पुष्ट उग्र दिखने वाला व्यक्ति था, जो अभी हाल ही में भर्ती हुआ था। जैक्सन नोडेड कर्टली, एंड हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन। जैक्सन ने संक्षेप में सिर हिलाया, और हमारा छोटा आइंस्टीन इस सुबह कैसा है। आई थिंक ही wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? क्या वह एक गणितज्ञ नहीं था श्रीमान जैक्सन? I think he was a Jew, Mr. Jackson. वह एक मिजाजी बदमाश था, जैक्सन ने गुस्से में कहा। Evans' face was unshaven, and he wore a filthy-looking red and white bobble hat upon his हेड। इवांस का चेहरा बिना हजामत किए हुआ था, और उसने अपने सिर पर एक फिल्दी मतलब गंदा सा, डर्टी, गंदा सा दिखने वाला लाल और सफ़ेद रंग का बड़ा सा टोप पहना हुआ था। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन मीन्स कम इन। कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए श्रीमान जैक्सन, मैं बस हजामत बनाने ही जा रहा था जब आप अंदर आए। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he's finished scraping that ugly mug of his. Clear? One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. इससे मुझे याद आया, इसने मुझे याद दिलाया। जैक्सन स्टीफन की ओर दृष्टि घुमाते हुए बोला, इस उस्तर कोठरी से बाहर ले आना जब ये अपने भद्दे चेहरे को खुरच ले। ठीक है, समझे?
हो सकता है इन दिनों ये हमारे ऊपर एक और उपकार कर दे और अपना गंदा गला काट ले. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod. Ramrod means like a tiger, straight in front of him. कुछ सेकंड के लिए इवांस सोचता हुआ उस आदमी की तरफ देखता रहा जो एक बाघ की तरह सीधा उसके सामने खड़ा था. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson कहता कि द्वितीय विश्व युद्ध के तमगों की एक स्ट्रिंग लड़ी गर्वपूर्वक उसके सीने के बाईं ओर की जेब पर सुशोभित हो रही थी. श्रीमान जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? ये आप ही थे जिसने मेरे नाखून काटने की कैंची ले ली थी. इवांस had always worried about his hands. इवांस हमेशा अपने हाथों के बारे में चिंतित रहता था, यानी हाथों का ध्यान रखता था. एंड योर नेल फाइल टू, और तुम्हारी नाखूनों की रेती भी. लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आइज स्मॉल्डर. देखो, एक क्षण के लिए इवांस की आंखें सुलग गई, यानी इवांस की आंखों में जैसे खून उतर आया, गुस्से में हो गया. बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम. सॉरी, डेंजरसली, खतरनाक तरीके से. बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन उनके लिए तैयार था. ऑर्डर्स फॉर द गवर्नर इवांस. ही लीन फॉरवर्ड एंड लेयर्ड. कह रही गवर्नर के आदेश हैं इवांस. वे आगे की तरफ झुका और लेयर्ड, लेयर्ड मीन्स टॉन्टिंग, कटाक्ष करते हुए. हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श. उसके बाद कुछ कठोर होती चली गई, रूखी होती चली गई. कंटेम्पटुअस विस्पर, यू वांट टू कंप्लेन, यानी घृणा के साथ फुसफुसाया कि तुम शिकायत करना चाहते हो, तुम्हें शिकायत है. इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर्स स्लाइटली. श्रग मीन्स उचका देना. इवांस ने हल्के से अपने कंधों को उचकाया. द क्राइसिस वॉज ओवर. और क्राइसिस, लड़ाई, द्वंद्व, डुअल, जो द्वंद्व था वो समाप्त हो गया. यू हैव गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप. तुम्हारे पास अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आधा घंटा है. इवांस, एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ. और इस गंदे टोप को उतार दो. मी डैड. ओह. Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. कहता मुझे ये टोप. इवांस ने अपना दायां हाथ बहुत प्यार से अपने गंदे ऊनी टोप पर रखा और उदासी से मुस्कुराया. क्या आप जानते हैं श्रीमान जैक्सन, केवल यही एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में किसी प्रकार का सौभाग्य लेकर आई है. काइंड ऑफ लक्की चार्म, एक भाग्यशाली वस्तु की तरह, यानी जैसे कोई ताबीज़, कड़ा, समथिंग एल्स. इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, यदि आप जानते हैं कि मेरे कहने का अर्थ क्या है. एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट. और आज मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी परीक्षा के साथ और सभी वह, बस कहने का मतलब वो कहता है कि एक लक्की चार्म की तरह आज मैं सबके साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है. बरीड समवेयर इन जैक्सन वॉज अ टाइनी कोर ऑफ कंपैशन एंड इवांस न्यू इट. बिकॉज सभी में जैक्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा, एक ऐसा कोना था जहाँ सहानुभूति थी, और इवांस इस बात को जानता था. Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and cat shaving. गिरा अभी इसी वक्त. और फिर ये शिरले मंदिर. करे यदि कोई ऐसी चीज़ थी जिससे जैक्सन वास्तव में इवान से नाराज होता था तो वह उसके लंबे घुंघराले बाल. एंड कैट शेविंग, और अपनी हजामत कर लो, हजामत बना लो.
At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. उसी सुबह 8:45 पर माननीय रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेबल माननीय स्टुअर्ट मैक्लेरी ने ब्रॉड स्ट्रीट का अपना अकेला कमरा छोड़ दिया और खुशी से कारफैक्स की ओर चल पड़ा. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून एंड अ लो ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउन्ड क्लerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. मौसम की सूचना देने वाले ने तापमान के आरंभिक जून के सामान्य तापमान से कुछ नीचे रहने की सूचना दी थी और एक लंबा काला ओवरकोट और कोनों से कम मुड़ा हुआ क्लर्कों जैसा टोप पहना उसने, जिससे हल्की बूंदाबांदी से बचा जा सके, जो कि अभी आधा घंटा पहले आरंभ हुई थी और जिसने उसके चश्मे के मोटे लेंसों पर छिड़काव कर दिया था. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस. उसके दाएं हाथ में एक छोटा सा भूरे रंग का सूटकेस था जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. विच कंटेंट ऑल दैट he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guild that afternoon on the Book of Ruth and a current copy of the Church Times. अगर जिसमें वो सब कुछ था जो उसके सुबह के कार्य के लिए, सुबह की ड्यूटी के लिए आवश्यक था, और उसके साथ उसमें एक सील लगा हुआ प्रश्न पत्र का लिफाफा, एक पीला जांच करने का फार्म, परीक्षा बोर्ड की तरफ से एक विशेष ऑथेंटिकेशन कार्ड, प्रमाणिक कार्ड, एक कागज़ काटने का चाकू, एक बाइबल, क्योंकि उसे उस दोपहर को महिला संस्था में रूथ की पुस्तक पर प्रवचन देना था, और चर्च टाइम्स मीन्स द चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर, चर्च टाइम अखबार की एक ताज़ा कॉपी है. द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM. 2 घंटे परीक्षा का कार्यक्रम 9:15 पर आरंभ होना था. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. इवांस तेज़ी से अपने चेहरे पर झाग बना रहा था, उत्पन्न कर रहा था, और जब स्टीफन्स 2 छोटी वर्गाकार मेजें लेकर आया और उन्हें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक उसकी बंक सोने के स्थान पर और दूसरी तरफ रोगन की हुई पत्थर की दीवार के बीच में संकर स्थान पर लगाया. नेक्स्ट, स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door. उसके पश्चात स्टीफन्स 2 सख्त कुर्सियां लेकर आया जो कम घिसी हुई थी, उसे उस मेज के सामने रखा जो कोठरी के दरवाजे के निकट रखी हुई थी. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी. जैक्सन अंतिम बार थोड़ी देर के लिए आया, अपने आप को अच्छी तरह से संभालना लड़के. इवांस टर्न एंड नोडेड. इवांस मुड़ा और उसने सिर हिलाया. एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन. एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स ऑफ. और ये जैक्सन ने पिन अप्स यानी जो उसके सेल की दीवार पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी उन्हें उतारने के लिए उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे हटाओ, इन्हें हटाओ. इवांस टर्न एंड नोटेड अगेन. इवांस ने दोबारा मुड़ा, घूमा और सिर हिलाया. आई वॉज गोइंग टू टेक दैम डाउन एनीवे. मैंने उतारने ही जा रहा था. अ मिनिस्टर इजंट ही द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, क्या जो आदमी यहाँ आ रहा है वह एक मिनिस्टर मीन्स, मिनिस्टर मीन्स पार्सन, पादरी है क्या, वह पादरी नहीं? आई मीन, ऐसा मैं समझता हूँ, मेरा कहने का अर्थ है. एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली.
और तुम्हें ही कैसे पता चला? जैक्सन ने धीरे से पूछा। वेल, आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प। कह रहा है अच्छा, मुझे कुछ फार्मों पर साइन, हस्ताक्षर करने थे, क्या मुझे नहीं करने थे? और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता था। अर्थात मैं देखने से अपने आप को रोक ना सकता नहीं, तो इसलिए मैंने देख लिया। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. इवांस ने अपने बाएं गाल पर ध्यान से उस तरह नीचे की ओर चलाया और सफ़ेद झाग में एक साफ निशान छोड़ दिया। Can I ask you समथिंग मिस्टर जैक्सन? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ श्रीमान जैक्सन? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? ही नोडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर। वे मुझे इस गंदी कोठरी में क्यों रखे हुए हैं? उसने दरवाजे के ऊपर एक बिंदु की तरफ लापरवाही से अपना सिर हिलाया। नोट अ वेरी नीट जॉब, कंसीडर्ड जैक्सन। हाँ, ये एक अच्छा कार्य नहीं है, जैक्सन ने स्वीकार किया। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। वे नहीं हैं, वे ईमानदारी से नहीं सोचते हैं कि मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। वे कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं इवांस, कोई भी अपनी बेकार समझ के साथ भी तुम्हारे लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता है। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन? कौन सुनने जा रहा है? कहने का मतलब वहाँ पे एक रिसीवर सेट किया गया था, तो उसने कहा कि कौन सुनने जा रहा है? आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सुनने जा रहा है लड़के, ये स्वयं गवर्नर हैं, देखना। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच एंड नॉट डू आई। वह तुम्हारे पर एक इंच भी विश्वास नहीं करता और ना ही मैं करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन। क्लियर? मैं तुम्हारे ऊपर एक हॉक, एक शिकारी बाज की तरह नज़र रखे रहूँगा इवांस, इसलिए अपनी नाक को साफ रखना। अपनी नाक को साफ रखना मतलब साफ सुथरे रहना, कोई गलती मत करना। क्लियर? समझे? ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, और वह दरवाजे की तरफ चला गया। इवांस नॉडेड, इवांस ने सिर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वॉज lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. तो पहले ही इसके बारे में सोच चुका था, और दूसरा रुमाल सोने के लिए बने पत्थर पर यानी बंक पर रखा हुआ था। वो सफ़ेद लिनन का साफ सुथरा मुड़ा हुआ वर्गाकार रुमाल था। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, केवल एक बात और आइंस्टीन, या वर्ड्स दैट, हाँ वह क्या है? गुड लक ओल्ड सन, तुम्हारा भाग्य अच्छा हो बड़े बेटे। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स द रेवरेंड एस मैक्लेरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। जेल के मुख्य द्वार के तुरंत भीतर एक छोटे से कक्ष में माननीय एस मैक्लेरी ने आगंतुक पुस्तिका में सफाई से हस्ताक्षर किए। एंड देंस वॉक्ड साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस the exercise yard to D wing where he was greeted by Jackson। और उसके पश्चात एक शांत जेल अधिकारी के साथ साथ डी विंग की एक्सरसाइज यार्ड यानी व्यायामशाला तक चला गया, जहां उसका जैक्सन के द्वारा अभिनंदन किया गया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम। विंग का बाहरी दरवाज़ा खोला गया और उसके बाद बंद किया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, और भीतरी भारी दरवाज़ा भी उसी तरह किया गया, वैसे ही बंद किया गया। एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग, और मैक्लेरी को स्टीफन्स के निरीक्षण में सौंप दिया गया। गेट द रेजर मरमर्ड जैक्सन, क्या रेजर ले आए? जैक्सन बड़बड़ाया। स्टीफन्स नॉटेड, स्टीफन ने सिर हिला दिया। वेल, कीप योर आइज स्कैन्ड क्लियर, स्किन मतलब अलार्म, चौकन्ना, ये अपनी आँखों को चौकन्ना रखना, समझे? स्टीफन्स नोडेड अगेन, स्टीफन ने दोबारा से लाया। एंड मैक्लेरी, और मैक्लेरी
His feet clanging up the iron stairs followed his new guide and finally stood before a cell door, where Stephens opened the peephole and looked through. और मैक्लेरी उसके पैर लोहे की सीढ़ियों पर रगड़ खाते हुए अपने नए पथ प्रदर्शक के साथ चले और अंत में वो कोठरी के दरवाजे के सामने खड़ा था, जहाँ स्टीफन्स ने झांक कर देखने का छिद्र खोला और अंदर देखा। That's him, sir. ये वो लड़का है श्रीमान जी। इवांस facing the door sat quietly at the farther of the two tables. इवांस दरवाजे की तरफ मुंह किए हुए दोनों मेजों से थोड़ा दूर बैठा था। His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. उसका पूरा ध्यान प्रारंभिक जर्मन व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ था। Stephens took the key from its ring. स्टीफन ने छल्ले में से चाबी निकाली। And the cell lock sprang back with a thud. और कोठरी का दरवाजा एक थर्ड धम की आवाज़ से पीछे की ओर खुल गया। मेटेलिक ट्वैंग, एक धात्विक ध्वनि। It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. प्रातःकाल के 9:10 का समय था जब गवर्नर ने रिसीवर को चालू किया। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions. वह जैक्सन को निर्देशित कर चुका था कि वह इवांस को अस्थायी रूप से छोटी सावधानी के बारे में बता दे। That was only fair, जो केवल सही थी। As if Evans would not spot it, जैसे कि इवांस ने इसे न देखा हो। But wasn't it all a bit theatrical? किंतु क्या ये सब कुछ नाटकीय नहीं था? स्कूलिश बॉय ऑलमोस्ट, लगभग एक स्कूल के लड़के की भांति। How on earth was Evans going to try anything on today? इस धरती पर किस प्रकार से इवान आज कोशिश करने जा रहा था, यानी क्या वो भागने जा रहा था, क्या भागने की कोशिश करने वाला था? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? यदि वास्तव में वह दूसरी बार जेल से भागने का प्रयास कर रहा था तो भगवान उसने रिक्रिएशनल ब्लॉक मनोरंजन विभाग से भागने का प्रयास क्यों नहीं किया? मच ईजियर, बहुत आसान था। बट ही हैडंट, किंतु उसने ऐसा नहीं किया था। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वह वहाँ था। सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, एक तालाबंद कोठरी में बैठा हुआ था। बिटवीन हिज all the prison officers on the alert, 2 more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. सभी जेल अधिकारी अलर्ट थे, मुस्तैद थे। 2 और तालाबंद दरवाजे उसकी कोठरी और बाहर मैदान के बीच में थे, और मैदान के आगे एक हेस्टेक मतलब पुआल के ढेर जितनी ऊंची दीवार थी। हाँ, इवांस इतना सुरक्षित था जैसे घरों में। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. किंतु फिर भी अगले कुछ घंटों के लिए रिसीवर चालू रखने में कोई परेशानी नहीं थी। It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? ये ऐसा तो नहीं था कि हर बातचीत को सुना जा रहा था, क्या ऐसा था? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. और दूसरी बातों में जांचकर्ता का एक कर्तव्य था कि संपूर्ण शांति को बनाए रखें। But still that little nagging doubt, किंतु अभी भी थोड़ा सा संदेह बाकी था। Might Evans try to take advantage of McCleary? हो सकता है इवांस मैक्लेरी से फ़ायदा उठाने की सोच ले। Get him to smuggle in a chisel or 2 or a rope ladder, और उसे एक या 2 छेनी या एक रस्सी की सीढ़ी तस्करी करने में शामिल कर ले। The governor sat up sharply.
गवर्नर तेजी से खड़ा हुआ. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used, but what about McClary? ये अच्छी बात थी कि इवान से हर प्रकार के हथियार जिसे वे प्रयोग कर सकता था से छुटकारा पा लिया गया था, किंतु मैक्लेरी के बारे में क्या था? What if, quite unwittingly, the innocent McClary had brought in something himself? क्या होगा यदि अनिच्छा से भी वो बेचारा नादान मैक्लेरी कुछ वस्तु स्वयं लेकर आ जाए? A jackknife, perhaps, शायद एक ब्लेड वाला चाकू. And what if Evans held him hostage with such a weapon? और क्या होगा यदि इवांस उसे इस प्रकार के हथियार से अपना बंदी बना ले? The governor reached for the phone. गवर्नर फोन तक गया. It was 9:12 AM. 9:12 का समय हुआ था. 9:12 का समय हुआ था. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McClary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." परीक्षा देने वाला और निरीक्षक आपस में अपना परिचय स्टीफन्स के द्वारा प्राप्त कर चुके थे जब जैक्सन वापस आया और मैक्लेरी को कोठी के दरवाजे से पुकारा. क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं श्रीमान जी? You too, Stephens. तुम भी, Stephens. Jackson quickly explained the governor's worry, and McClary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly fixed his clothes. Something hard here, sir. जैक्सन ने शीघ्रता से गवर्नर की चिंताओं के बारे में बताया और मैक्लेरी ने धैर्यपूर्वक अपने हाथ कंधे के स्तर तक ऊपर उठा लिए और जैक्सन ने उसके वस्त्रों को झड़काया. यहाँ कुछ कठोर वस्तु है श्रीमान जी. समथिंग हार्ड देयर सर. कुछ कठोर वस्तु है श्रीमान जी. माई रीडिंग ग्लासेस. मेरे पढ़ने के चश्मे, पढ़ने की ऐनक. रिप्लाइड मैक्लेरी. मैक्लेरी ने उत्तर दिया, लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस. अपने ऐनक के खोल को देखते हुए. जैक्सन क्विकली reassured him and bending down on the landing thumb flicked the catches on the suitcase. जैक्सन ने तुरंत सहमति दिखाई और झुककर उसके सूटकेस को अंगूठे से दबाकर खोला. He picked up each envelope in turn carefully, passed his palms along their surfaces. उसने हर लिफाफे को उलट पुलट कर उठाया, सावधानीपूर्वक अपनी हथेली से उसकी सतह को दबाकर देखा. एंड seemed satisfied. और संतुष्ट सा प्रतीत हुआ. He riffled curiously through a few pages of Holy Writ and vaguely shook. उसे चौकन्ना होते हुए पवित्र लेख के उलट पुलट कर देखा और वेगली शुक द चर्स्टाइन और चर्स्टाइन अखबार की तीव्रता से हिलाकर देखा. ऑल राइट सो फार. अभी तक सब ठीक था. बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली. किंतु एक वस्तु मैक्लेरी के सूटकेस में थी जो इसे गंभीर रूप से परेशान कर रही थी. तो गाइस, इनफ फॉर टुडे. This is a lengthy chapter, so we shall discuss this chapter in 2 or 3 parts. So further part we shall discuss in the next video. And to know the more thrills, more excitement, and there is something twisted. To know all that, you should wait for the next video. Till then, be happy. Good day. Thank you.